السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام۔ آج بات ہوگی جان ایلیا کے مطابق۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1931 میں امروہہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 8 نومبر 2002 میں تقریباً 71 سال کی عمر میں کراچی میں ہوئی۔ ان کی زوجہ کا نام زاہدہ حنا تھا۔ پیشے سے وہ ماہر فلسفی، شاعر، ادبی نقاد تھے۔ ان کی پیشہ ورانہ زبان اردو تھی۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1971 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 8 نومبر 2002 میں ہوئی۔ بر صغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے شاعر، پاکستانی فلسفی، سوانح نگار اور عالم تھے۔ وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے۔ وہ معروف صحافی رئیس امروہی اور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی اور مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابقہ خاوند تھے۔ جان ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ، اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسین ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس عالمی ماحول نے جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم طراز ہیں: میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا: چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جان اپنے لڑکپن میں بہت حساس تھے۔ ان دنوں ان کی کل توجہ کا مرکز ایک خیالی محبوب کردار صوفیہ تھیں۔ ان کے غصے کا نشانہ متحدہ ہندوستان کے انگریز قابض تھے۔ وہ ابتدائی مسلم دور کی تاریخ ڈرامانی صورت میں دکھاتے تھے، جس وجہ سے ان کے اسلامی تاریخ کے علم کی بہت سے مداح تھے۔ جان کے مطابق ان کی ابتدائی شاعری اسٹیج ڈرامے کے مکالمات فطرت کا تاثر تھے۔ جان ایلیا کے ایک قریبی رفیق سید ممتاز سعید بتاتے ہیں کہ جان ایلیا امروہہ کے سید المدارس کے بھی طالب علم رہے۔ یہ مدرسہ امروہہ میں اہل تشیعت حضرات کا ایک مذہبی مرکز رہا ہے۔ چونکہ جان ایلیا خود شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جا بجا شیعہ احوال کا خوب استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک سے انہیں خصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنی سیادت پر بھی ناز تھا۔ سعید کہتے تھے جان کو زبانوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ انہیں بغیر کوشش کے سیکھ لیتا تھا۔ عربی اور فارسی کے علاوہ جو انہوں نے مدرسے میں سیکھی تھی، انہوں نے انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں کچھ مہارت حاصل کر لی تھی۔ بات کریں جان کی پاکستان آمد کی تو اپنی جوانی میں جو کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیا۔ جان ایلیا نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ ان کی شاعری ان کے متنوع مطالعے کی عادت کا واضح ثبوت تھی، جس وجہ سے انہیں وسیع مداح اور پذیرائی نصیب ہوئی۔ جان ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی بھی راضی نہ کیا جا سکا۔ ان کی پہلی شاعری مجموعہ شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ نیاز مندانہ کے عنوان سے جان ایلیا کی لکھی ہوئی اس کتاب کی پیش لفظ میں انہوں نے ان حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے جس میں رہ کر انہیں اپنی خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا اور تیسرا مجموعہ بعنوان گمان 2004 میں شائع ہوا۔
जॉन एलिया मजमूई तौर पर दीनी मुआशरे में अलल एलान नफी पसंद और फौजूवी थे। उनके बड़े भाई रईस अमरोही को मजहबी इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वो अवामी महफिलों में बात करते हुए बहुत एहतियात करते थे। जॉन एलिया तराजुम, तदवीन इस तरह के दूसरे मसरूफियात में भी मशगूल रहे, लेकिन उनके तराजुम और नसरी तहरीरें आसानी से दस्तयाब नहीं। फलसफा, मंतक, इस्लामी तारीख, इस्लामी सूफी रवायात, इस्लामी साइंस, मगरबी अदब और वाक़या करबला पर जॉन का इल्म किसी इंसाइक्लोपीडिया की तरह वसी था। इस इल्म का निचोड़ उन्होंने अपनी शायरी में भी दाखिल किया ताकि खुद को अपने असीरों से नुमाया कर सकें। जॉन की अज़दवाजी जिंदगी। जॉन एक अदबी रिसाले इंशा से बतौर मुदीर वाबस्ता रहे, जहां उनकी मुलाकात उर्दू के एक और अनथक मुसन्निफा जाहिदा हिना से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। जाहिदा हिना अपने अंदाज की एक तरक्की पसंद दानिश्वर हैं और अब भी 2 रोजनामों जंग और एक्सप्रेस में हालात हाजरा और माशरती मौज़ूआत पर लिखती हैं। जॉन की जाहिदा से 2 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुए। 1980 की दिहाई के वस्त में उनकी तलाक हो गई। इसके बाद तन्हाई के बाइस जॉन की हालत अबतर हो गई। वो पड़मर्दा हो गए और उन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी। जॉन की वफात तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 कराची में हुई। जॉन के मजमुओं की बात करें तो उनके शायद 1991 यानी 2003, कुमान 2004, लेकिन 2006, गोया 2008, रामूस 2016, उनकी नसर फरनूद 2012 नहीं बचा था। ये अल्फाज सिराज नकवी के हैं, जिनका ताल्लुक अमरोहा में सैयद हुसैन जॉन अस्कर नकवी अल मारूफ जॉन एलिया के खानदान से है और उनका शुमार भारत में उर्दू सहाफत के मसरूफ सहाफियों में होता है। सिराज नकवी ने बताया कि जॉन एलिया उर्दू अदब के एक अजीम शायर हैं, लेकिन वो बहैसियत शौहर और वालिद के नाकाम साबित हुए। जॉन साहब मेरे अजीज और मेरे खानदान से थे। जाहिदा हिना से मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं, वो उत्तर प्रदेश से भी नहीं है, लेकिन मैं ये बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जॉन एलिया साहब घर के निज़ाम को चलाने के मामलात में गलत थे। बहैसियत शायर उनकी अजमत अपनी जगह मुकद्दस है, लेकिन उन पर हिजरत का दर्द इस कदर हावी हो गया था कि वो अपने घरेलू जिम्मेदारियों को भुला बैठे थे। मैंने उनकी बेटी फिनाना फरनाम का एक मजमून पढ़ा, जिसमें वो शिकायत करती हैं कि दुनिया के लिए मेरे अब्बू 2002 में इंतकाल कर गए, लेकिन हमारे लिए बहुत पहले मर चुके थे। उन्होंने अपने इस मजमून में जॉन एलिया की लापरवाही तफसीलन बयान की है। उर्दू अदब से वाबस्ता नई नस्ल के शायर सालिम सलीम ने बताया कि जॉन एलिया बेशक उर्दू के एक मायानाज शायर गुजरे हैं, लेकिन वो मामूल की जिंदगी जीने के हुनर से आरी और गाफिल थे। जाहिदा हिना आज भी जॉन एलिया के बारे में बात नहीं करना चाहती। उनसे जब गुफ्तगू होती है, लेकिन उन्होंने जॉन एलिया के मुतालिक बात करने से साफ इनकार किया था। बच्चों को जाहिदा हिना ने ही पाला पोसा। जॉन तो बाजार से सब्जी लाने का छोटा काम तक नहीं करते थे। जाहिदा हिना अपनी जगह ठीक थी। जॉन साहब को शराब की लत खा गई। सिराज नकवी कहते हैं, मारूफ शायर जॉन एलिया कराची हिजरत करने के 18 साल बाद 1975 में पहली मर्तबा अपने आबाई वतन अमरोहा आए हुए थे। मैं उन दिनों मीरठ में क़याम पज़ीर था, जहां मेरे वालिद वकालत के पेशे से वाबस्ता थे। वहीं पे मेरे चाचा और जॉन साहब के बचपन के दोस्त आशिक अब्बास नकवी भारतीय फौज की इंजीनियरिंग विंग में मुलाजिम थे। जब आशिक अब्बास की अपनी जिगरी दोस्त जॉन साहब से फोन पर बात हुई तो फरमाइश आई कि अमरोहा आ ही रहे हो तो कैंटीन से शराब की कुछ बोतलें भी अपने साथ लेते आना। गालिबन जॉन साहब ने ये फरमाइश इसलिए की थी क्योंकि तब ये आम तासुर था कैंटीन में शराब मयारी और सस्ती मिलती है। अब्बास नकवी साहब इंतहाई शरीफ और शर्मीले तबीयत के इंसान थे। वो मुझसे कहने लगे कि जॉन ने तो मुझे एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बहरहाल वो ड्यूटी पर चले गए और वापसी पर कहने लगे कि जॉन एलिया ने आज मेरी नाक कटवा दी। कैंटीन शराब लेने गया तो वहाँ मौजूद मेरे साथी मुझसे पूछ रहे थे कि नकवी साहब खैरियत तो है, आपने जिंदगी में कभी शराब सूंघी तक नहीं।
मौका गनीमत जानकर मैं भी चाचा के साथ अमरोहा आ गया। रात देर गए तक जॉन साहब के सामने बैठे रहा। वो मजीद बताते हैं, अमरोहा में जिस मकान में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से महज चंद मीटर के फासले पर वो मकान है जहाँ जॉन एलिया का बचपन गुजरा है। मैंने उन्हें करीब से देखा और समझा है। ये सच है कि जॉन साहब को शराब की लत खा गई। हमारे खानदान में ऐसा होता था कि जो ज्यादा बिगड़ता था उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता था। इसी तरह जॉन साहब को भी नजरअंदाज किया गया और उनका ये शेर इसकी तर्जुमानी कर रहा है। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। जॉन साहब की अमरोहा से बेइंतहा मोहब्बत। जॉन एलिया के करीबी रिश्तेदार मोहम्मद अली हैदर नकवी ने अमरोहा में जॉन एलिया का आबाई मकान से खुसूसी बातचीत की। मैं इस वक्त भाई जॉन के मकान में ही बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। दरअसल हमारे यहाँ खानदान में एक शादी है जिसकी मैं इंतजामात देख रहा हूँ। हैदर नकवी का कहना है कि जॉन एलिया को अपने वतन अमरोहा और अपने मुल्क हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत थी। कई अशार में बान नदी और गंगा जमुना का जिक्र मिलता है। अपने वतन की एक अलग ही बात होती है, मगर भाई जॉन के अमरोहा से मोहब्बत की शिद्दत कुछ ज्यादा ही थी। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा मशहूर शायर हैं। नौजवान नस्ल में उनकी शायरी को लेकर जुनून है। सालिम सलीम कहते हैं कि जॉन एलिया कसीरुल जहद शख्सियत के मालिक थे, जिसका सबूत उनकी शायरी पेश करती है। जब सन 1988 में जॉन साहब अमरोहा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलगाड़ी से उतरते ही जमीन पर लेट गए। सर पर मट्टी फेंककर ज़ारो कतार रोने लगे और अमरोहा की याद में रोते थे, लेकिन हमेशा के लिए वापस आना भी नहीं चाहते थे। जॉन को बेशक भारत और अमरोहा की बहुत याद सता रही थी, लेकिन 1965 की जंग के वक्त यही शख्स खान बहरिया के लिए तराना भी लिख डालते हैं। ये उनकी कसीरुल जहद शख्सियत होने का सबूत है। सालिम सलीम मजीद कहते हैं कि आजकल जॉन एलिया सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में शामिल हैं। जॉन एलिया की मकबूलियत की कई वजूहात हैं। उनकी शायरी का एक बड़ा ऐसा है जिसको समझने के लिए किसी लुगत की जरूरत नहीं। उनके अशार दिल को फौरी छूते हैं और जहन में घर कर जाते हैं। हालांकि उन्होंने मुश्किल शायरी भी की है। जॉन एलिया का अनोखा और मुनफरिद लबो लहजा नौजवान नस्ल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, खासतौर पर उनके मुशायरों में अपने अशार झूम कर पढ़ना। सिराज नकवी का कहना है कि जॉन एलिया अपने आबाई वतन अमरोहा को कभी भुला नहीं पाए और इसको अपने अशार में याद करते रहे। जब जॉन साहब हिजरत के बाद पहली मर्तबा अमरोहा आए तो मैंने उनके अंदर की बेकरारी और बेचैनी को महसूस किया। इस वक्त अमरोहा जिला मुरादाबाद का हिस्सा था। उनका इस्तकबाल की मुनासबत से यहाँ एक तकरीब मुनक्किद हुई थी जिसमें मुरादाबाद के मजिस्ट्रेट भी शिरकत फरमा थे। जॉन साहब ने इस तकरीब में एक गजल पढ़कर सुनाई थी जिसमें अमरोहा से जुदाई का दर्द साफ नजर आ रहा था। इसके चंद अशार यूं हैं। हम आंधियों के बिन में किसी कारवां के थे, हम आंधियों के बिन में किसी कारवां के थे, जाने कहां से आए हैं, जाने कहां के थे, मिलकर तपाक से ना हमें कीजिए उदास, खातिर ना कीजिए कभी हम भी यहाँ के थे, क्या पूछते हो नाम और निशान, मुसाफिरां हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान के थे। सिराज नकवी कहते हैं कि कराची में रहकर उन्हें अपने आबाई मकान और बान नदी की याद कसरत तड़पाती थी, जिसका अंदाजा उनका शेर से लगाया जा सकता है। ए नसीम बहार कर दालूद, ए नसीम बहार कर दालूद, खाक उड़ती है इस मकान में क्या, इस समंदर पे तशना काम हूँ मैं, इस समंदर पे तशना काम हूँ मैं, पान तुम अब भी बह रही हो क्या। इन अशार को वो शख्स अच्छी तरह समझ सकता है जो अमरोहा का रहने वाला हो। जॉन साहब के जाने के बाद उनका अमरोहा में मकान बंद हो गया था। हम बाद अज़ां उसे कमाल अमरोही ने खरीद लिया। हिजरत के बाद जब भी वो यहाँ आए तो इस मकान को हसरत भरी नजरों से देखते थे।